Guys, I'm audible to all. Yes, sir. Okay, great. Sure. Guys, you able to see the screen of my I've shared? Just a sec. Able to see this black means total blank screen, guys? Everyone, एक blank screen दिख रहा है इधर आपको? Guys, we start with isomerism. Okay. So here, let me tell you isomerism. Anyone? Any idea what is isomerism, guys? Radhika is telling something is wrong with microphones. Okay, okay, no problem, no worry. Radhika, don't worry. What is isomerism, beta? Isomerism क्या होता है? Sir, same molecular formula, different structures. Same molecular formula, but different structures. Great, beta. Now the best part here is, guys, isomerism को we're going to be classify them. It's a, guys, structural isomerism and a stereoisomerism. Okay, structural isomerism is all about breaking and forming, breaking and, guys, forming. ठीक है, और डिटेल में हम लोग बात करेंगे. But just stereo means, guys, a movement, only movement of molecule involved. That's it. No breaking, no formation of new bonds, no breaking of all bonds. Something about what? Movement of molecules. Now, structural go, guys, we can further classify into, guys, chain isomerism, position isomerism, guys, ring isomerism, guys, functional isomerism. Further, let me tell you, metamerism. And finally, we have, guys, tautomerism. ठीक है एवरीवन? एक एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, but everywhere in this isomerism we are involved with breaking of bond and formation of new bond. Okay. Similarly, here stereo के अंदर we have two parts. That is configurational and, guys, conformational.
What do you mean by that? I'm saying that here I have, guys, what? Two parts, that is configurational and conformational. Configurational, guys, means very slow movement of molecule, guys. Very fast movement. ठीक है? Further is, guys, I like to tell you that here I have two parts. Configurational is further divided into two parts: geometrical isomerism and, guys, optical isomerism. Geometrical isomerism एक ही लाइन में खत्म. That is, this is slow movement across double bond. जो भी डबल बॉन्ड है, we'll see many case inside it, guys. इतना जबरदस्त ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सब केस के साथ सीखेंगे हम लोग, डोंट वरी एट ऑल. बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिमाग में फिट करो पहले. स्लो मूवमेंट अक्रॉस, गाइस, डबल बॉन्ड. सिमिलरली, दिस इज, guys, movement of whole chiral molecules. डिटेल में बात करते हैं, डोंट वरी. बट you know, guys, now what the chiral carbon and chiral molecules means now. So, guys, let's study properly. So, let's start isomerism with structural one first of all, guys. So here I'm adding one slide here. Okay, having many slides now, fine. अब देखिए इधर, structural isomerism, right, guys? तो structural isomerism में, guys, what I am saying that structural isomerism में सबसे पहले let's start up with what? Let's start up with, guys, what? Chain isomerism. Guys, here chain isomerism, simple. Chain length changed. Chain length changed नहीं समझते, okay. So I just say that here. चलो. Chain की length कितनी है? Sir, chain की length 4 carbon. Chain की length 4 carbon. You know that it's called as IUPAC, butane. Now चलो फटाफट, जल्दी. अभी इसकी, you know ना, IUPAC, guys, अभी हम लोग ने एक्चुअली लास्ट IUPAC देखा था लास्ट 2 सेशंस में. तो चेन की लेंथ जल्दी बोलो कितनी है? चेन की लेंथ is going to be 3, guys. Yes or no? So it's a 2-methyl propane. Basically, और शॉर्टकट देता हूं चेन आइसोमेरिज्म पहचानने के लिए. वन मोर शॉर्टकट, गाइस. That is, here, see the root word. See the here, जल्दी क्या है? The root word changed. Means that has to be, guys, what? जल्दी chain isomerism. Am I clear, guys? Everyone? Chain isomerism shortcut में Yes, sir. क्या? Can you please tell me? That is, the
chain length changed or root word changed. Both definition you can adopt. शॉर्टकट में अगर बात करूं मैं इधर तो बोलो बोलो क्या chain length changed or guys what root word changed. I hope I'm clear now. So let's see guys. Position isomerism. Guys, go ahead. Them slow and steady. क्या? See here now. It's guys what? Butane, right? Chalo. Now if I shift this bond here, fine. So ठीक है. So what I'll write here जल्दी. क्या बोलेंगे इसको guys? Great. Very good. So आप ही बताइए guys कि just see क्या सेम है? Root word guys what? Same. And क्या 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 लिखूं? Position of guys bond only changed. Right? खाली क्या चेंज हुआ guys? Position of bonds. So root word position isomerism में क्या समझा? जल्दी जल्दी. Position isomerism is nothing but क्या? Root word same but position of bond changed. You guys here understand that पहले bond पहले first दो कार्बन पे था. पहले बॉन्ड कहां था गाइस? फर्स्ट सेकंड के बीच में. अभी बॉन्ड कहां चले गए गाइस? ठीक है, लिटरली हम लोग ने बॉन्ड तोड़ के नया बॉन्ड बनाया. हेंस वी आर स्टडीइंग अंडर स्ट्रक्चरल गाइस. बॉन्ड तोड़ रहे हैं, नया बॉन्ड बना रहे हैं. सो हियर आई एम क्लियर दैट position isomerism is nothing but a position isomerism is nothing but a same root word and guys what? Change in position, right? What's the name of it? फटाक से राधिका. Now you can enable earphone. अच्छा आपका problem है here. So here name guys फटाक से. क्या लिखूं जल्दी? बोलो. 1,2 dichloro cyclopropane. cyclopropane. ठीक है. Great. अभी can you please guys tell me? चलो. इसमें क्या? What's the name guys? Whatever you can write down, right? बोलो बोलो. बराबर है. सो आपने देखा क्या ऑब्जर्व किया आपने कि सर ये रूट वर्ड जल्दी दोनों में क्या है? Root word remains same guys and
क्या? Root word changed, but the position of functional group, root word same है, but position of functional group, guys, what? Position of functional group changed. Radhika, you are not audible. I think so. Arzu is giving answer, right? Am I clear, guys? Everyone? So, I hope अभी तक आपको पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म में फर्क समझता है, राइट? ओके, यस और नो गाइस? Yes, sir. छोटा सा एक्सरसाइज समझते हैं. C5H12 के वेरियस आइसोमर्स बनाते हैं. दैट इज ठीक है. Or else I can form here what? We can have one branch. Fine. Now I can here create here. See, this is like one more branch. ठीक है guys? अभी can you hear guys? Tell me. This is A, this is B, this is C. A, B, and C all are position isomer or the chain isomer. Anyone? Position isomer. Why Arsu? Why position isomer? Sir, this I'm Radhika. I'm sorry. Please come again. Here, I'll just teach you here. Go with root word, beta. Always go with root word. What is, beta? It is. It is beta. Everyone. Root word changed. Arzu beta. इधर बोलो. Oh, again change in root word. So consecutively we are getting change in what beta? Root word. So all are guys what? नहीं समझा बेटा आरजू? Am I clear now? Shreyash, Radhika. Yes, sir. So I've given you the shortcut, guys. Check the root word. That's it. Don't get confused in the position and chain. Chalo, let's go ahead. I'm guys here. थोड़ा सा और एक लेवल बढ़ा रहा हूं मैं. अभी राइट आंसर देना है बेटा. अदरवाइज यही कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहूंगा पूरे दिन में. ठीक है. ये A है, ये B है. Let me tell you. ठीक है. This is C1. अभी ये D बनाने जा रहा हूं मैं. E बनाने जा रहा हूं मैं.
एवरीवन, ठीक है, मैंने इतने ही बनाया। चलो, किसके आइसोमर है ये? आप देख रहे हो, हर एक में 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है। मैं क्लियर? हर एक में क्या है गाइस? 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन। सो चलो, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, ए एंड डी, ए एंड ई, बोलो व्हाट्स द रिलेशन? श्रेयस, ए और बी चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर? चेन आइसोमेरिज्म। हाँ बेटा, चेन आइसोमेरिज्म, ए एंड बी। चेन आइसोमर। यस, ग्रेट। श्रेयस, ए और सी, सेम, चेन आइसोमेरिज्म। ए और डी, पोजीशन, नो नो वाई? नो सर, चेन आइसोमेरिज्म। क्यों सेम, चेन? सी, इट्स अ root रूट word is वर्ड। hex, यस, and here root word is रूट। but. Fine, good. A or E? सेम अगेन, चेन आइसोमेरिज्म। Again, super. Arzu, Arzu, B and C, B and D, B and E. Good. Arzu, you can type also over there. Arzu, B and C, B and D और B and E क्या होगा बेटा? राइट ना? रॉन्ग तो रॉन्ग, सीखने के लिए आए ना हम तो बेटा। Okay. Let's ask. Radhika is saying, Arzu is saying that B and C is position. B की चेन है 5 और C की चेन है 5। ग्रेट, ग्रेट। सो इट्स जस्ट अ पोजिशन। सुपर, वेरी गुड आरजू, वेरी गुड राधिका, गुड। बी एंड डी, बी एंड डी गाइस, गुड। Radhika is saying that chain. Okay. What's Arzu is saying that? So why so much time, guys? B की 5 की चेन है, D की सिर्फ 4 की चेन है। Yes. Chain length changed. Root word changed. Am I clear? Very good, Arju. Now B and E, finish it off fast. Huh? B and E. Good, थोड़ा फास्ट ना, क्यों टाइम लगना चाहिए भाई? बी में कितना है? 5 कार्बन। ई में कितना है? बोलो, क्या चेंज हो गया? चेन लेंथ। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्लियर है एवरीवन? ओके, ग्रेट। चलो भाई, फटफट। श्रेयस, सी एन डी एंड सी एन ई फटाफट बोल दो। चलो, सी एन डी एंड सी एन ई फटाफट। चेन आइसोमेरिज्म, सी एंड डी। C and D is chain isomerism. Great, Shreyas. And सी C एंड डी अगेन चेन आइसोमेरिज्म। again chain. Why? Because 5 रूट वर्ड चेंज। root word change. Great. And guys, anyone now? Anyone? D and E. पोजीशन, Position. Position. Great. Lovely, guys. So I hope अभी आप लोग को समझ रहा है. Let me go towards the next concept. That is, guys, भी आई होप चेन और इसके क्वेश्चंस हैंडल कर पाएंगे।
We're going to have so much question today, guys. Don't worry. And let me concept at least structural wind up करने दो. So here, क्या रिंग आइसोमर चलो. देखना भाई. Here, alkenes and cycloalkanes are always considered as ring isomers क्या बेटा? They're always considered as what? Ring isomers of each other. Why? See, C3H8, C3H6 ले लो चलो, अल्कीन्स है ना. क्या है इसमें? सर 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन. The same can be written as so guys, what I'm saying that here, the what ring and alkene and cycloalkanes are always considered as a guys what? ठीक है? Am I right, everyone? Okay. Yes, sir. One more, very good. One more example. That is, guys, very simple. Cycloalkenes, alkadienes. I'm just coming on that word, don't worry. And alkynes are also considered as guys what? ठीक है, अभी देखो इधर. This is guys cycloalkenes. Where you have molecular formula this is considered as cycloalkenes, guys. Am I clear? Now, this is cumulated डाइन्स. क्यूमुलेटेड मतलब एक ही कार्बन ने 2 बार डबल बॉन्ड बनाया. गाइस डाइन्स 2 बार अल्कीन्स. डाइन्स मतलब 2 बार अल्कीन्स. Am I clear, guys? Everyone? Cumulated dienes or conjugated dienes. Any डाइन मतलब डबल बॉन्ड आने चाहिए. फॉर्मूला क्या है? जरा जरा लिखो. C3 3 कार्बन है भाई, और हाइड्रोजन कितना है? मैचिंग मैचिंग. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. यस और नो? अल्काइंस गाइस, क्या है ये? प्रोपाइन. C3H4 guys. Same molecular formula but different structure, guys. This is ring develop कर सकते हैं वो लोग by just cycloalkene से. Hence they togetherly are called as guys what?
ring isomers. Am I clear, guys? Everyone? Yes or no? ring isomer clear है बेटा? हाँ कि ना? Everyone, be fast, guys. Should I come again? Okay. Everyone say yes. That's very good. So I'm going to the next concept. Yeah, everyone ने yes बोला. Yes, going. Great, guys. So let me padak se shortcut में. There are two examples that, guys, you have to remember that key alkenes and cycloalkanes as well as cycloalkenes, alkynes and alkadines are the good examples of ring isomer, guys. These two only in the whole chemistry. So ये जो सब टैगलाइन है वही खाली याद करना है, everyone. Now there is various बिफोर गोइंग अहेड लेट मी टेल यू छोटा सा चीज भी आपने देखा इधर भाई cycloalkenes, conjugated dienes, cumulative dienes and the alkynes are the ring isomer. So I'm 100% sure that this won't be taught in your previous class. Am I clear? These all things जो इतना डीपली मैं जा रहा हूं वो आपके प्रीवियस क्लास में नहीं सिखाया था. दैट आई एम डैम श्योर लिख के देता हूं मैं. तो अभी हम लोग को द ईयर ऑफ स्टार्टिंग में ही पूरा अच्छे से सीखने मिल रहा है और एक एक चीज हमें समझ में, मतलब ये सब चीज आंखों के सामने जाएगा और इसको हम लोग रोज 10-10 12 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग क्यों अच्छा स्कोर नहीं ला सकते? राइट और रॉन्ग, गाइस? प्लीज टेल मी यस और नो. सो गाइस इतना सारा नया नया चीज जो सीखने मिल रहा है वो एवरीडे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. फ्रॉम आवर बुकलेट that is having huge number of questions, as well as, guys, we have a software through which you can generate the concept जो भी आज पढ़ा isomerism का पेपर फटाक से क्रिएट किया खुद से in that software within 5 minutes. You can give the test. कितना आ रहा है आप देखो. जो लास्ट टॉपिक हमारा हुआ राधिका जी, तो आपने टेस्ट क्रिएट किया खुद से, दिया नोमेनक्लेचर का टेस्ट. ये सब चीज हमें करना है राधिका जी. तो ये सब चीज करेंगे. नॉन स्टॉप प्रैक्टिस हो करने के लिए क्वेश्चंस, बुकलेट के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं राधिका जी, प्रीवियस टॉपिक नोमेनक्लेचर, और जो जो नहीं आता है वो पूछना है. हैव द नंबर ऑफ डाउट्स, डेवलप इट, पढ़ो उसको जोरदार. ठीक है, so let's start, guys. Here functional isomerism is nothing but a, so सबसे पहले सब लोग को पता है aldehyde and ketone, right? Aldehyde and ketone, guys, CnH2nO is a common molecular formula. As example, अगर if you want, then I can give you a minimum 3 carbon required. चलो, second, carboxylic acid and ester. CnH2nO2 is a common molecular formula, guys, and let me tell you. चलो, ठीक है. प्रोपेनोइक एसिड,
ठीक है, मिथाइल इथेनॉइड। सो गाइस आप देखो कितने कार्बन है, बोलो बोलो। 3। कितने हाइड्रोजन है, सब मिला के 6। और कितने ऑक्सीजन है, 2। CnH2NO2। मैं क्लियर गाइस एवरीवन? बैठ रहा दिमाग में? श्रेयस, आरजू, Yes, sir. ग्रेट। सो aldehyde ketones, acid esters, even your what? Alcohols and phenols. They are the guys having same formula. Alcohols, let me tell you here, ethers. That is ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? आर यू बैक फास्ट? इथेनॉल। एनीवन? आर यू बैक ऑफ दिस? लास्ट सेशन में सीखा था हमने, राधिका आना चाहिए अभी। बी फास्ट। आर यू बैक? करते जाना आर यू बैक पैरेलली हमें। बोलिए 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 अर्जुन, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। जो आता है वो बोलना है बेटा, नहीं रॉन्ग होगा या तो राइट होगा, और क्या टेंशन की क्या बात है। रॉन्ग होगा तो सीखने मिलेगा। लेट्स गाइस व्हाट एनीवन? Ethoxymethane. क्या? इथॉक्सीमीथेन, यस। सो राधिका प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बेटा। टॉपिक होने के बाद वो पढ़ना है प्रॉपर, रोज 8-8 10-10 घंटा पढ़ना है, तो ही ये टारगेट पॉसिबल है। 100% मैं बोल रहा हूँ। 8 to 10 आवर्स रोज का पढ़ा तो ही आपका टारगेट 110% अचीव होगा भाई। लिख के देता हूं मैं। एनीबडी हैज कंफ्यूजन कॉल मी, डोंट वरी। सिंपल है बात। जो मेहनत करता है उसको ऊपर वाला फल देता ही है भाई। कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। मेहनत करने का इरादा है तो ही मैदान में कूदना है। चलो भाई आगे। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। गाइस नाउ यू नो गाइस दिस साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आई होप समझ रहा ना ये आगे ना। चलो नेक्स्ट गाइस, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। हाँ, इसका मतलब क्या? इस ध्यान से। हाँ, ठीक है। अल्काइल ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ है आरजू? अल्काइल ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। उधर अल्काइल ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ है? दिस इज गाइस नाइट्रो बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट। क्लियर गाइस एवरीवन? हाँ कि ना? वन डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस गाइस। आई होप नहीं याद है तो भी मैं याद करवा देता हूं। चलो इधर श्रेयस एक ही अल्काइल ग्रुप है, ओनली वन अल्काइल ग्रुप। हाँ बेटा, 1 degree only. यस ग्रेट। बेटा ये कितने अल्काइल ग्रुप है? 2 degree. Great. And finally, guys,
Can you see this? 3 alkyl group. 3 3 degree. great. सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो अर्जो, राधिका. C3H 3 4 5 6 7 8 9. इधर भी 3 3 4 5 6 7 8 9. 3 3 3 3 3 9 हाइड्रोजन. क्लियर कट बात भाई. Guys, 1 degree, 2 degree, 3 degree amines are the yes or no? Okay. Similarly, आगे मैंने ऑलरेडी लिख दिया था. Alcoholic and phenolic also are the isomers. Alcoholic and तो ये एनीबडी कौन सा अल्कोहल इसको क्या बोलते हैं? एनीबडी? हाँ, कोशिश करो, कोशिश करने का है भाई. इसको बोलते हैं मैं राइट बेटा एवरीवन? इट्स बेंजाइलिक अल्कोहल. क्या बोलते हैं इसको बेटा? बोलो. Okay. Okay. Now, thank you. Here, OH directly benzene से जुड़ा होगा. Come again. OH डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होगा तो क्या बोलते हैं? राइट. OH डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है क्या? इधर नहीं जुड़ा है, तो हेंस अल्कोहल बोला. Am I clear, राधिका? Yes, great. Cresol. Cresol is one of the phenol where it's a orthocresol. Very good. So I hope इधर तक क्लियर जा रहा है सबको. Am I clear, guys? Everyone? चलो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं. Draw the isomers of क्या क्वेश्चन है आर्सो? C7. आई कांट हियर यू. बेटा आरजू एक काम कीजिए, आप री लॉग इन कीजिए एक बार, तो यू कैन एबल टू हियर मी. अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो. राधिका, C7H8. कैन यू हियर दिस? अभी इसमें हाइड्रोजन is very less. Can you see this? Hydrogen is, guys, what? Hydrogen is very less. Can you see benzene? Guys, everyone, benzene समझता है? बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन देखो कितना कम है. हाँ कि ना? बेंजीन के अंदर it is benzoic alcohol. yes. Very good आशु. मतलब मुझे इधर क्या समझाना है कि ये जो हाइड्रोजन कम है इधर भी. कैन यू सी इक्वल? कार्बन का ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ऑलवेज ट्राई टू गो विथ गाइस बेंजीन.
बेंजीन के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6। और इधर 7। Am I right? तो ये एक कार्बन, and now with one oxygen you can create alcohol. Am I right? Benzylic alcohol. ठीक है। अभी can you count here carbon? Yes, 1 2 3 4 5 6 7. Yes sir, 7. हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7 और एक 8. Can you see this? 8 hydrogen and oxygen. Krish, am I clear? Krish, I mean Shreyash. Yes, sir. अभी what I can do here, I can do like this. OH को डायरेक्टली भी अटैच कर सकता हूं मैं, क्योंकि दिमाग में था मेरे, क्या दिमाग में था श्रेयस, कि अल्कोहल एंड phenols are the Functional Isomers. 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 So you can see here 7 carbons are there. 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8. राधिका, आप समझ में आ रहा है? सिमिलर Yes, sir. फिनॉल में, जिस क्रेसॉल में यू कैन हैव ऑर्थो, मेटा एंड ग्रेट बीटा व्हाट, पैरा. ठीक है। एंड आरजू, इधर हम लोग ने लिखा था, इफ आई हैवंट फॉरगेट दैट, अल्कोहल के साथ कौन फंक्शनल आइसोमर है बेटा? इन दिस स्लाइड सी, अल्कोहल्स एंड व्हाट? बोलिए, बोलो. Alcohols and ethers are isomers. Am I right, guys? It's called as, guys, anisole, the common name. ठीक है, everyone? Everyone? Yes, sir. Methoxybenzene. अपनी बात हुई थी राधिका, इसको इज नॉट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप, राइट? ये नहीं, इसको प्रायोरिटी नहीं है, तो प्रायोरिटी किसको दे दी? बेंजीन को दे दी मैंने, जाओ. और उसको आगे अल्कोक्सी करके लिखा, मिथॉक्सी करके. मैं राइट गाइस, एवरीवन? तो ये 5 आइसोमर्स डेवलप हुए. दिस आर 5 आइसोमर्स डेवलप्ड बाय C7H8O, guys. Am I clear, guys, everyone? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट, लवली गाइस. चलो एक थोड़ा सा पढ़ के फिर क्वेश्चंस पे आते हैं. मेटामेरिज्म. Metamerism is performed by, guys, bivalent, or properly by polyvalent functional group. क्या? Metamerism is performed by bivalent or polyvalent functional group. Am I right, guys, everyone? Yes or no? Yes, sir. What is polyvalent? तो भाई ये कीटोन है,
कीटोन के आजू बाजू कितने अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं? बोलो ना। कीटोन के आजू बाजू 2 अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, तो हेंस इट्स अ बाइवेलेंट। कीटोन इज अ बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। बट अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। अल्डिहाइड इज गाइस व्हाट? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप गाइस। नहीं समझ रहा है? क्या बोला मैंने? ये नाइट्रो ग्रुप, बोलो बोलो बोलो, एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रो ग्रुप। मोनोवैलेंट। यस। ये साइनाइड ग्रुप क्या है? ये एक ही अल्काइल ग्रुप, मोनोवैलेंट। आइसोसाइनाइड ग्रुप क्या है? ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओए, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही अल्काइल ग्रुप, क्या? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यस और नो? बट ईथर, ईथर ईथर में क्या बेटा? ओके ओके, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, राइट? ईथर इसे जल्दी बोलो। बोलो बोलो, ईथर इज अ, बराबर है? हाँ कि ना? यस सर। अभी बेटा ये 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, और ये बोलो 3 डिग्री अमाइन, राइट? हाँ, तो बेटा जल्दी बोलो, वो दिस इज, इसको क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट। इसको, डाइवैलेंट। और इसको, ट्राइवैलेंट। बराबर है? सो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर, दैट इज this can perform क्या? मेटामेरिज्म कैन बी परफॉर्म्ड बाय दिस, राइट किया हुआ है, दिस कैन नॉट परफॉर्म। क्या बेटा? सबसे पहले कंडीशन समझ में आया? यस सर। कैन नॉट परफॉर्म मेटा, बेटा एकदम सिंपल है ना। हियर चलो कीटोन लेते हैं। दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है गाइस, एट बोथ साइड we have different alkyl group guys, both side different alkyl group. Either see, or one of the side, see, पूरी चेन डिस्टर्ब हो गई, चेंज हो गई। वन ऑफ द साइड क्या चेंज हो गया भाई? चेन डिस्टर्ब हो गई। कैन यू सी दैट? और कैन यू सी दिस? अल्काइल ग्रुप ही पूरा चेंज हो गया बोथ साइड। सो here everyone, either of the side, either of side or at both side, what? अल्काइल ग्रुप बेटा क्या हुआ? बोलो बोलो, आइदर ऑफ द साइड और बोथ साइड क्या हुआ?
alkyl group change is called a metamerism. And functional group remains same, guys. That is ketonia. क्या क्या बोला मैंने? कैन यू रिपीट राधिका जी? सपोज ये Either on the side or both the side changes, but the functional group remain the same. so इधर राधिका जी, can you tell me the metamers of this? Diethyl, this is ether, common name. Go ahead. So क्या होगा इधर? I can क्या कर सकता हूँ बेटा? बोलिए. Methoxy group. मैंने अल्काइल ग्रुप को उधर भेज दिया है, बराबर? So one more time I can do here. ठीक है? So इधर बेटा क्या, जल्दी बोलो. There are three metamers. Three metamers produced with a formula C4H10O. अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप सेम रख के बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में क्या बेटा, जल्दी, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप सेम रख के क्या आइदर ऑफ द साइड और बोथ साइड अल्काइल ग्रुप अगर मैंने चेंज किया, देन इट्स कॉल्ड एज, गाइस, व्हाट? Metamerism. मेटामेरिज्म. ग्रेट. क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Okay. So guys, I am starting up tautomerism. We'll see. थोड़ा सा पहले क्वेश्चन करते हैं. चार चीज हमारी हो गई है. क्विक रिकैप फिर बोलूं तो सबसे पहले we did what, guys? फटाक से चेन आइसोमेरिज्म. क्या था चेन आइसोमेरिज्म पहचानने का शॉर्टकट? सर दोनों में क्या चेंज होना चाहिए? Root word. Yes. पोजीशन में बट रूट वर्ड सेम रहेगा, just the position gets changed, guys. फिर we started up the identified मतलब after that we started up with ring. Ring में two very important example, दो example बरोबर याद रखने हैं. That is alkene and cycloalkane are the ring isomers, as well as cycloalkenes, alkadines and alkynes are the ring isomers, right? Now guys, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कौन कौन, जल्दी सब याद होना चाहिए फटफट. थोड़ा अपन मतलब लेक्चर के बाद थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस करने बैठ जाओ. इसके सेम डे पे खत्म होना चाहिए टॉपिक. चलो, अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स, अल्कोहल ईथर्स, साइनाइड आइसोसाइनाइड, नाइट्रोनाइट्राइड, 1 degree 2 degree 3 degree amines are the isomers. Similarly guys, what? Alcohol, phenol. तो इस तरह से metamerism finally it's performed by, guys, polyvalent functional group will change the alkyl group either of the side, and guys, what? Follow. Change the alkyl group either of the side and Functional group remains the same. functional group remains same. Great. So question. So that was a quick revision by you. Yes. Now guys, CH3, CH2, CH double bond CH2. And see this, all the question I'm solving from our booklets. Radhika, you can see the first beginner box question. This both are, I should not give option. It's which isomers? Jaldi. Chain isomers. Chain isomers, that's right answer. Very good. Why? Because the root words are different. Here root word will be bute, but here root word will be prop. Shreyas, am I clear?
Yes, sir. Great. Arzu, very good. Now, Radhika, am I clear? But I was the one who answered. Sorry. चल तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, हाउ मैनी कार्बन रिक्वायर्ड for just understand guys question and then you come up with answer. Anyone want to try? You can, guys. So it should be 4 for chain isomer. And for position, it should be, I guess, Yes, go ahead, beta. it should be 5 or 6. I'm not sure for position, but for chain, I'm sure it should be 4. Okay. Because if it is 1, then there is no chain, and for 2, there is no 2 and 3, there is no possible isomers for them. So it should be 4. Okay. So, Shreyas, any idea or should I go? So both 4. Both 4, okay. So here, let me correct you, beta. Here, Radhika, chalo, or Shreyas, you both are saying that ब्रांच बनाने के लिए इसको निकाल दिया, चेन डिस्टर्ब कर दी मैंने. So this at least require 4. So for chain isomerism in alkane require 4 carbon. अभी अगर श्रेयस 4 कार्बन मतलब ऐसा बेटा, हाँ, अभी इसको बेटा आप पोजीशन, ये पोजीशन है 2 पे मिथाइल ब्रांच, ये पोजीशन को आगे लेके नहीं जा सकते, ये एंड कार्बन आ गए दोनों. सो राधिका जी, अगर मैं 5 कार्बन करूं, कितना किया राधिका, आरजू, मैंने इधर कितने कार्बन किए बेटा, बोलो राधिका. 5 कार्बन. तो इसको अगर मैं राधिका, अगर इसको मैं आगे भी लेके जाता हूं इधर, फाइन, आई कैन नॉट, इसको एंड पे नहीं लेके जा सकता हूं मैं, तो इसको अगर इधर भी लेके गया तो भी कंपाउंड विल बिकम सेम. नहीं समझा? समझा. Okay, so it should be 6. Yes. So guys, minimum for what? Position isomerism in alkane. इसको बेटा श्रेयस इधर लाया, हाँ, देखो श्रेयस नाम लिखो बेटा, क्या, 2 मिथाइल पेंटेन, इधर श्रेयस 3 methyl
pentane. श्रेयस, रूट वर्ड सेम है, पोजीशन ओनली चेंज, एम आई राइट? Yes, sir. So position isomerism in alkane required at least 6 carbon, guys. So you know that ये मेरे बुकलेट के क्वेश्चंस करके गए तो 110% सब इसमें से ही आएगा. दैट्स आई एम 110% श्योर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, हियर सोच के how many minimum carbon requires in alkenes, guys? ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कभी भी, तो भी लिख रहा हूं मैं. चलो, guys, go ahead. Option 3. 4,4. Yes, great answer. That's perfect answer. Because here ये अल्कीन लिया मैंने, इसको उठा के इधर ब्रांच लगा सकता हूं मैं. So guys, for doing what, guys? Chain isomerism in alkene. कभी भी एंड कार्बन चेन आइसोमेरिज्म में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं. यू नो, एक को निकाल के दूसरे पे लगाना है, ऐसे बीच वाले, बीच में मिनिमम 2 चाहिए, तो दैट्स व्हाई 4 की चेन isomerism alkene requires, guys, what, Arju? At least 4 carbon, right, beta? Yes, sir. Great. And here श्रेयाश, इधर हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन खाली चेंज करनी है. हाँ, am I right? But 1 in, but 2 in. Yes, So sir. but 1 in, but 2 in. So alkene में position isomerism requires at least, guys, what? 4 carbon. Am I clear, everyone? Yes, sir. So we have enough time, guys. You can have many questions, but that's it. Sure. So here, master question है. चलो, same. हाँ बेटा, क्या? अल्काइंस में चेन आइसोमेरिज्म करना है, ऑलवेज देखो नोटबुक और पेन साथ में रखना पड़ेगा आपको. जैसे क्वेश्चन पूछो, फटफट फटफट वर्कआउट करके आपको आंसर देना है, गाइस. अल्काइंस में मिनिमम कार्बन रिक्वायर फॉर चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, गाइस. ऑप्शन यू वांट, फाइन.
It should be 1. 5-4. So you're not audible. Hello? Is he there? Yeah. Hi, guys. You able to? Hello. You able to hear me, guys? Everyone? Yes, sir. Okay. Tried it? हाँ बेटा. Have you? The first option, 5 and 4. 5 and 4. That's perfect right answer. So here, guys, why 5? Here, Shreyash, see, can you see Shreyash? Beta, hello. Yes, sir. See, ये दोनों बाहर निकल गए, टर्मिनल कार्बन है. ये दोनों बाहर निकल गए because it is terminal carbon, right? Terminal carbon never participate in chain isomerism. Terminal carbon never participate in chain isomerism. इसकी बेटा वैलेंसी कॉम्प्लीटेड है, यू नो, वैलेंसी कॉम्प्लीटेड, कोई ब्रांच नहीं आ पाएगा इसमें. हाँ बेटा, तो इसके लिए ये 3 कार्बन वेस्ट हो गए. Sir, can you pardon? You weren't audible in some section. Okay. I am saying that here these both are terminal carbon. These are nothing but what? Terminal carbon. Yes. So terminal carbon never participate in chain isomerism. Fine. अभी ये देखो, ये वाला कार्बन है ना, राउंड किया मैंने, देखो, दिस आर ट्रिपल बॉन्ड है ऑलरेडी, और इधर एक सिंगल बॉन्ड है, राइट? तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है. हाँ, बराबर. Sir. तो इंटरचेंज करने के लिए यही 2 कार्बन अवेलेबल है, इसको एक दूसरे पे लगा सकते हैं. ठीक है. सो मैंने अभी मेरी चेंज हुई. सो चेन isomerism in beta what alkyne requires at least what? 5 carbons. Am I clear, beta? Yes, sir.
and see, Shreyash, ये ट्रिपल बॉन्ड को कैन आई शिफ्ट हियर बेटा? Yes, sir. So here I got the same root word but different position of triple bond. So is guys, here but 1 ion and this will be but 2 ion. So for position isomerism in alkyne requires at least 4. 4. Great, Chala. Very good. Now, let me go ahead and take the question on. Here, beta, this and this, right? Yes, sir. Ring isomerism. Yeah, sorry. Ring isomerism. अभी आपको दिमाग चल रहा है आइसोमेरिज्म में, ग्रेट बेटा। खाली सिखाने की जरूरत होती है बस, एक बार सिखा दिया तो फिर फटफट फटफट दिमाग अच्छे बच्चों लोग को ऑटोमेटिक चलने लगता है। मैं रेड गई। Yes, sir. सो अभी आप लोग को इसके अल्टीमेट टास्क इज नॉट एंड्स हियर। अच्छे बच्चे नॉन स्टॉप इसका नॉन स्टॉप रिवीजन करते हैं और इसको इतना प्रैक्टिस करते हैं कि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आए आइसोमेरिज्म का रॉन्ग नहीं जाने देते हैं। दैट्स द चैलेंज दे एक्सेप्ट ऑलवेज। तो आपको भी अभी क्या करना है, क्लियर है बेटा? चल, आइडेंटिफाई आइसोमेरिज्म। Functional. क्यों? सर क्योंकि उधर कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर एस्टर है। हाँ, यस जल्दी आएगा। अल्डिहाइड है, ग्रेट। अल्डिहाइड एंड अल्कोहल, ठीक है। यस सर। चलो और इसी 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, देखते हैं। मुझे वो प्रीवियस वाला नहीं समझा। हाँ सॉरी, प्रीवियस वाला मतलब मतलब ये वो सब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका फंक्शनल आइसोमर एस्टर होना चाहिए ना। एस्टर होना चाहिए, बट अगर हायर लेवल पे जाएंगे ना तो आप देखो ये C4H8O2 राइट, यस सर। इधर C4 कितने 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना राइट। यस सर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल। ये दोनों फंक्शन मिलके फंक्शनल आइसोमेरिज्म कर सकते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। लेवल इसका और बढ़ते जा सकता है। देयर आर मेनी फंक्शनल आइसोमर्स, बहुत सारे फंक्शनल को मिक्स करके अपन एक दूसरे के साथ मैचिंग कर सकता है, ठीक है। तो लॉजिक लॉजिक क्लियर रखना है, इसमें सब याद करने की जरूरत नहीं है। क्या लॉजिक है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, सिंपल, एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और पूरा क्या चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। मैंने यस सर। Yes, sir. ग्रेट। नाउ
CH3S, CH2, CH3, and guys, bolo. This both are position isomerism. मेटामर्स. एक मिनट, ऑप्शन देख लो पहले. सेम. हाँ, ये मेटामर Identical. आइडेंटिकल. आइडेंटिकल. ये मेटामर्स क्यों नहीं हुआ समझा बेटा? यस सर. क्योंकि यू कैन नॉट डू द चेंजिंग हियर. ये उल्टा कर दिया है खाली बस. बोथ नेम इज सेम बेटा. सो घाई नहीं करने का कभी भी, राइट? कभी भी मेटामेरिज्म के लिए आइदर ऑफ द साइड मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, याद रखो. यस सर. एटलीस्ट 3 कार्बन रिक्वायर्ड फॉर डूइंग व्हाट? Metamerism. ये सब नॉलेज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी करेंगे तो बढ़ेगा आप लोग का गाइस. डेफिनेटली यू कैन रीच वॉट एवर यू डिजायर. दैट्स आई एम डैम श्योर. एक बार खाली पढ़ने का जुनून आना चाहिए बस, फिर कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है भाई. चलो भाई फट. Sir, ये भी same ही है. I mean, identical ही है. ये भी सेम ही है, ये भी गाइस व्हाट? आइडेंटिकल ही है. एम आई राइट श्रेयाश? यस सर. ग्रेट. क्योंकि देखो ना, इसको उल्टा किया हुआ है खाली बस. एम आई राइट? एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. So here we'll stop today guys, and please guys do revision of this. Okay? Hello. Bye guys. थैंक यू सर. Welcome beta. Thank you, sir. Welcome beta. Bye. Sir, हाँ बोलिए बोलिए. sir, मैं राधिका बात कर रही हूँ. हाँ बोलिए ना बेटा. सर, मैंने कल एस ब्लॉक कंप्लीट किया और मैंने सॉल्व किया आपके बुकलेट से. तो मेरे को थोड़ा डाउट्स है उसमें. अच्छा, तो सी एस ब्लॉक का डाउट है और आई विल बी कॉलिंग यू एंड विल बी क्लियरिंग. फाइन. तो मुझे सारे डाउट्स है ना व्हाट्सएप कर दो पहले. हाँ सर, बहुत सारे डाउट्स नहीं है, बट बहुत स्पेशल बहुत मतलब है पर. हाँ नो प्रॉब्लम. मैं ना आपको मेरे मतलब फ्री शेड्यूल में है ना आपको कॉल करके सारे क्लियर कर दूंगा. तो मुझे खाली टेक्स्ट करके रख दो तब तक. तो सर, जब आप बुलाओगे ना उसके पहले मैंने आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर भी सॉल्व करके रखती हूँ, तो मैं एक साथ पूछ सकती हूँ. हाँ नो प्रॉब्लम, विल डू. थैंक यू सर. बाय. बाय.